So, well, we begin today with another topic of the MDS 113. Yes, my screen is being shared. Thank you. As we always say that this particular content will be available after the session also as an audio recording. So you may keep this with you. So we have already done here. We have already worked with the name base classifier. And the most important part is here how we are going to have a probability estimations, required data processing, M estimates we are looking for, feature selections, and all are these the parameter we are going to work with this one. So let's begin with this, that how we are going to have a probability estimations, what are the data processings and M estimates, feature selections. These are target to understand in this one. We are going to understand this and we'll finish it up soon. Thank you. So let's begin with this. So we have a target to understand this section here. So we are studying and we need to go for this probability estimation. We had already worked on that. We were looking to find out basically what are the aspect of the feature selection and the mutual information classifier. So this is basically a target of the classification. So we are going to work with this one. Sweet. Yes. So that we have already discussed about that, and that particular content has already been given to you. And assumptions, we have already talked about what kind of assumptions are required in the base term. This is called as a probability estimation that we have already done. कितना probability estimation इसके अंदर रहेगा, क्या क्या इसके aspects रहेंगे, that we have already gone for. And we have just created these different kind of models on the basis of probability. These are the basically all probability estimation. So now we have a target to understand basically the classifier. This is exactly our objective to go for, what exactly the meaning of this classifier. And if you can work on naive-Bayes classifier, you can easily understand that this can also be created with the help of like Python programmings. That is also possible. And the content is already available in your WhatsApp drive link. It is there. Coming on your first year MTech group. And here we go. When we are having this group, as I already told you many times, that please go keep checking your drive. Every content, every topic is available there. So this we have a folder MDS 113. You go here. This is question bank and solution. So whatever we are studying here, every topic is available in your drive. So that's why I always say you please keep checking. The content is there, naive Bayes is there, naive Bayes classifier is there.
and everything is available there. You need to just only check it out that what is required there. So if you go for question bank and solution, so here we have this one. So every unit, question bank unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, and finally the unit 5. So all the units of question and solutions are there. So if you are working on the unit number 3, you can go for there. I'm showing you. And yes, I suppose my screen is visible to you all. So we are working on this naive-Bayes classifier algorithm. What is the naive-Bayes? We have already worked. Bayes theorem, we have worked on that. Working on naive-Bayes classifier, we have already worked. This example we have already taken. Advantage of the naive-Bayes classifier, disadvantages are there, application of naive-Bayes classifier. So we have completed this naive-Bayes classifier, and this is all about the complete working, how it is working on. So now let's move on a few advantage and disadvantage of this classifier. So if you see here, the naive-Bayes is one of the fast and easy ML machine learning algorithm to predict the class of data set. It can be used to binary as a multi-class classification. बाइनरी के लिए भी यूज किया सकता है और मल्टी क्लास के लिए भी, मतलब 0 और 1 के लिए भी यूज किया सकता है. ओनली 2 ऑप्शन, इट्स गुड और बैड. इस टाइप के जो क्लासिफिकेशंस होते हैं हम उनको बोलते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन, मतलब अच्छा है बुरा है. और जब क्लासिफिकेशंस की मल्टीपल, कम अच्छा है, ज्यादा अच्छा, इससे अच्छा, उससे अच्छा है, मल्टीपल क्लासेस जब क्रिएट हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. It performs well in multi-class prediction as compared to the other algorithm. It is the most popular choice for text classification problem. Disadvantages of naive-Bayes classifier. Disadvantages of naive-Bayes classifier का मतलब क्या है? Disadvantages ये हैं कि naive-Bayes assumes that all features are independent और unrelated. वास्तव में ऐसा होता नहीं है. हमने कहा था ना कि जो features हैं वो आपस में एक दूसरे से independent है. But sometimes it happens that features are a bit correlated with each other. एक दूसरे से feature relate हो सकता है. तो जब एक दूसरे से कोई feature relate हो जाता है, जैसे suppose कीजिए मैं बात करता हूँ दो चीजों के क्लासिफिकेशन के लिए. आपकी एक वार्डरोब है और वार्डरोब के अंदर आपके पास में बहुत सारे कपड़े हैं. इन दैट यू हैव शर्ट्स एंड एज वेल एज द ट्राउजर्स. अब शर्ट और ट्राउजर को क्लासिफिकेशन करना है, एवरीथिंग इज फाइन. अब हम कहते हैं कि इनके जो सारे फीचर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होंगे. तो हाउ यू आर लुकिंग टू गेट. अब मशीन को क्या, आपकी आंखें तो देख के पहचान जाते हैं कि ये शर्ट है, ये ट्राउजर है. पर अगर मशीन को आप देना शुरू करेंगे तो क्या फीचर्स देना स्टार्ट करेंगे. फीचर्स देने का मतलब कहीं ना कहीं उसकी सबसे पहले ट्राउजर्स की लैग्स के बारे में बताएंगे कि ट्राउजर में ये लैग्स होती है. उसकी बेल्ट की स्ट्रिप के बारे में बताना शुरू करेंगे. उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना शुरू करेंगे. तो ऐसा हो सकता है कि शर्ट के पास भी 2 आर्म्स होती है, ट्राउजर में भी 2 लेग्स होती हैं. तो अल्टीमेटली ये जो फीचर हुआ, ये फीचर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ. अब किसी बच्चे का ट्राउजर है, उस बच्चे का ट्राउजर और आर्म्स जो है, स्लीव्स जो है हमारी, वो लगभग लगभग सिमिलर मैच कर सकती है. तो कंफ्यूजन कैन बी क्रिएटेड. कॉलर की जो बेल्ट है शर्ट का, वो कॉलर का जो बेल्ट है दैट कैन बी मैच विद द ट्राउजर्स बेल्ट एज वेल. दूसरा ऑप्शन आपके पास में आ गया. तो जब ऐसी सिचुएशंस आपकी आती हैं, इस टाइप की सिचुएशन, इस टाइप की कंडीशंस आती हैं, तो वहां पर ये जो फीचर्स के बारे में हमने कहा ना, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, वहां कहीं ना कहीं कोरिलेशन क्रिएट हो जाता है. सो एप्लीकेशन ऑफ नैव-बेस क्लासिफायर कहाँ यूज किया था? क्रेडिट स्कोरिंग में यूज किया था, मेडिकल डेटा क्लासिफिकेशन में यूज किया था, रियल टाइम प्रेडिक्शंस में यूज किया था, स्पैम में किया जा सकता है और सेंटिमेंट एनालिसिस में किया जाता है. ये बहुत जगह क्लासिफाई. सेंटिमेंट चाहिए, इसका मूड अच्छा है खराब है, ये गुस्से में या इमोशनल है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके ऊपर सेंटिमेंट एनालिसिस की जा सकती है. ठीक है. टाइप्स ऑफ नेव बेस्ड मॉडल कौन कौन से बेसिक टाइप है? गॉसियन है, मल्टीनोमियल है, बर्नौलीज है, ये इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप है. ये हमने यहाँ पे एक पाइथन
एक प्रोसेस दिया हुआ है जो आपके सिलेबस कंटेंट से मैच भी करता है। सिलेबस कंटेंट में आप जब जाते हैं तो आप देखते हैं प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन ये पढ़ चुके हैं, रिक्वायर्ड डेटा प्रोसेसिंग। तो जो रिक्वायर्ड डेटा प्रोसेसिंग है वो यहीं पे काम आती है कि किस तरीके से प्रोसेसिंग हम लोग करने वाले हैं। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, क्या क्या करना होता है उसके लिए, कौन कौन से स्टेप्स हैं। गेटिंग दी डेटा सेट सबसे पहला स्टेप ही हो गया। दूसरा इंपोर्ट, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। तीसरा डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे। फिर मिसिंग वैल्यूज अगर हैं डेटा के अंदर तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, एनकोड करेंगे कैटेगरी डेटा को, स्प्लिट करेंगे डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग, और फिर फीचर की स्केलिंग कर देंगे। ये स्टेप्स हैं। इंपोर्टिंग ऑफ लाइब्रेरीज ये हम आपको कई बार सिखा चुके हैं, यही स्टेप इसमें यूज किए थे। इंपोर्टिंग ऑफ द डेटा सेट ये भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये हम आपको काफी बार सिखा चुके हैं। और विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज डायग्राम वन कैन इजीली अंडरस्टैंड। अब ये जो डायग्राम्स दिए गए हैं दैट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि देखिए फाइल में डेटा किस तरीके का होता है। जैसे सपोज करें इंपोर्टिंग का डेटा सेट, सेव द पाइथन फाइल डायरेक्टली। अब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पाइथन कर सकते हैं, लेकिन आपने अपना खुद काम किया हुआ है। ये एक पाइथन 3 का खुद का ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है जिसमें जाके डेटा सेट सी डॉट CSV स्टोर हो जाता है। आप गूगल के कोलैब पे काम करते हैं, आपका तरीका अलग है। आप क्या करते हैं, फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब से डेटा फाइल को सीधे सीधे अपलोड करा देते हैं सिस्टम में, वो फाइल कहीं भी पड़ी हो, नो इश्यू। जरूरी नहीं है आपको ड्राइव पे सेव करके रखनी है, आप फाइल कहीं भी उठा के रखिए, आप वहां से डेटा को उठा के रख सकते हैं। तो डेटा सेट को रीड करने का तरीका आपको पता है, पांडास की मदद से आप डेटा सेट को रीड कर सकते हैं। हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यू, या कोई याद हो जो पीसीए कंपोनेंट एनालिसिस कराई थी, ये स्टेप यूज किया जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, डिलीटिंग अ पर्टिकुलर रो। अगर कोई फालतू की रो है तो उसको डिलीट कर सकते हैं, मीन कैलकुलेट कर सकते हैं उन सबका, है ना। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास में ये जो बेसिकली यूज किए जाते हैं इनके लिए है। इस तरीके से आप यहाँ पर अब डेटा सेट जो आपके पास में आता है उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि उस डेटा सेट को आप स्प्लिट कर देते हो दो पार्ट में, ट्रेनिंग और टेस्ट। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। ये आपको याद हो, ये वही वैलिडेशन टेक्निक है जो आप यूनिट नंबर 1 में पढ़ रहे थे। प्रोसेस यहाँ पे किस लिए यूज किया है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में ही वही वैलिडेशन प्रोसेस आप करेंगे ही करेंगे। फीचर की स्केलिंग, ये दिस इज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं कहता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिन फीचर्स में आपने काम करना है ना उनकी स्केलिंग करना बहुत जरूरी है। उन फीचर्स को आपस में कोरिलेट करना जरूरी है। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक रेड कलर का शर्ट या रेड कलर की कार खरीदनी जानी है, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट व्हाट काइंड ऑफ अ रेड आई एम लुकिंग फॉर, and that is red is matching with the people that kind of a red I'm looking for, that can also be get through the wavelength and is getting all the color illuminations। तो वो थ्रेशोल्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा कलर इल्यूमिनेशन का। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर यही यूज किया जा रहा है कि जो भी एक सपोज की एग्जांपल लिया गया है कि एग्जांपल है कंट्री है, उसमें कुछ लोगों की एज है, कुछ सैलरी है, और फाइनली कि वो ये चेक किया जा रहा है कि वेदर दे परचेज द थिंग्स और नॉट, है ना, कि सामान खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। तो एक डेटा सेट पे काम किया जा रहा है। तो अब ये जो है एज 38 43 ये सब सैलरीज जो है इनको स्केल करना है। तो स्केलिंग करने के लिए इनके बीच में हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, कि मीन वैल्यूज को निकालते हैं, और मीन वैल्यूज को निकालने के बाद इनको एक नॉर्मलाइज वैल्यू में ले लिया, मतलब एक रिलेशन 0 ले लिया, उससे कौन सी वैल्यू ज्यादा है कम, ये इस तरीके से हम रेशनलाइज कर देते हैं। दिस इज वन काइंड ऑफ। तो प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स आपको जनरली सिर्फ स्टेप्स मेंशन करने हैं, इतना डेटा सेट आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। दिस इज ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड, समझ में आ जाए, और कभी आप पाइथन प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर पाए। नेक्स्ट जो है आपका वो है मशीन लर्निंग के मॉडल्स। क्या क्या मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं, मशीन लर्निंग के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, डायमेंशनल डिडक्शन और डीप लर्निंग, ये बेसिकली मॉडल्स हैं। अब ये है क्या, क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग मॉडल्स कौन कौन से हैं, सुपरवाइज हैं। तो आप इस फिगर को देख लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मॉडल अगर क्रिएट कर रहे हैं तो आप किस तरीके से क्रिएट करें। सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर आपके पास में क्या होता है, आपने सीधे सीधे इनपुट किया, इनपुट देने के बाद आउटपुट को चेक किया, यहाँ पर एक क्रिटिक है जो मैच करता है इसको और एरर बता देता है। अनसुपरवाइज मशीन में हमें मैपिंग होती है। अनसुपरवाइज में क्या होता है, डेटा होता है विदाउट लेबल, सीधे जाता है और आउटपुट में निकल के क्लासिफाइड हो जाता है, कुछ हम नहीं पता, किसी के साथ कोई मैचिंग नहीं हो रही, बस क्लासिफिकेशन आउटकम आ गया तो आ गया।
तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या हो रहा है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आपने इनपुट दिया, उसकी स्टेट्स होती हैं, कोई एक्शन हुआ, एक्शन का स्टेट और आउटपुट आया, यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होता है जो क्रिटिक होता है, उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इन्फॉर्मेशन देके दोनों को मैच किया जाता है और सिग्नल को चेक कर दिया जाता है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स हैं कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में कौन से है ना, सारा जो आप यहाँ पर देख रहे थे, फीचर सिलेक्शन, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, तो मॉडल अजम्पशंस, इस तरीके से मॉडल्स के अजम्पशंस होते हैं। अच्छा, नई पेज अब जो आपने पढ़ी थी, नई पेज मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आप उसको करने जाते हैं, सॉल्व करने जाते हैं, आप देखिए तो ये वाला पार्ट जो मैंने आपको डिस्कस किया था, दीज आर द मॉडल अजम्पशंस, है ना, क्या क्या होते हैं ये सारे अजम्पशंस यहाँ पर यूज किए जाते हैं। लीनियर रिग्रेशंस, डिसीजन ट्री, ये सारे मशीन लर्निंग के मॉडल्स। अब आता है जो लास्ट टॉपिक है वो है फीचर सिलेक्शन। व्हाट इज अ फीचर सिलेक्शन? फीचर सिलेक्शन होता क्या है? व्हाट इज फीचर सिलेक्शन? नीड फॉर फीचर सिलेक्शन, फीचर सिलेक्शन मेथड, टेक्निक्स, फीचर सिलेक्शन स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज द फीचर सिलेक्शन? अब फीचर सिलेक्शन होता क्या है? फीचर सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि देखिए, जब किसी भी चीज का हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारा डेटा आपके पास हो सकता है, लेकिन आपको तो कोई एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के बेसिस पर आपने कोई डिसीजन लेना है। जब आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप क्या चेक करते हो? आप ये चेक करते हो कि मुझे डिसीजंस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स चाहिए। जिन पैरामीटर्स को आप वहां पर लेते हो उसी को आप बोलते हैं फीचर सिलेक्शन। ठीक है, वही कहलाता है आपका व्हाट इज द फीचर सिलेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ फीचर सिलेक्शन। तो यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। सो नीड फॉर फीचर सिलेक्शन, फीचर सिलेक्शन की नीड मैंने आपको बता दी। इट हेल्प्स टू अवॉइड द कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, अननेसेसरी बहुत वाइड नहीं जाता, अलग अलग दिशाओं में आपको सोच नहीं पड़ता, स्पेस थ्रू हो जाते हैं आप, और एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स पर काम करते हैं जिन पॉइंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है। It helps in the simplification of the model so that it can be easily be interpreted by the researcher, reduce the training time, टाइमिंग को reduce कर देता है, ट्रेनिंग का मतलब मॉडल को ट्रेन करने का टाइम। It reduces the overfitting, hence enhances the generalization. Feature selection technique, supervised feature selection technique, unsupervised feature selection technique, इसके भी दो तरीके होते हैं फीचर सिलेक्शंस के। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये अगर आप एक बार को समझ जाएंगे तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। फीचर सिलेक्शन, सुपरवाइज्ड फीचर सिलेक्शन, अनसुपरवाइज्ड फीचर सिलेक्शन। सुपरवाइज में क्या करते हैं? फिल्टर मेथड, एम्बेडेड मेथड, रैपर मेथड। फिल्टर मेथड में क्या करते हैं कि मिसिंग वैल्यूज को देखा जाता है, हटा दी जाती है, इन्फॉर्मेशन जहां से इंक्रीज हो रही है उन पैरामीटर को जाता है, शाई स्क्वायर टेस्ट किया जाता है, यहाँ पे फिशर्स के स्कोर किए जाते हैं। एम्बेडेड में क्या कहते हैं? रेगुलराइजेशन किया था, रैंडम फॉरेस्ट का दो तरीके यूज किए जाते हैं, और रैपर में फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन, बैकवर्ड फीचर सिलेक्शन, एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन और रिकर्सिव फीचर। तो आप चाहें तो ये पूरा का पूरा जो भी आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप पढ़ रहे हैं, रैपर मेथड, एम्बेडेड मेथड, फिल्टर मेथड, ये पूरा का पूरा डायग्राम आप जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको बना के आप दे सकते हैं। ठीक है, दिस इज द सेट ऑफ फीचर्स, जनरेट सबसेट, एल्गोरिथम लगाइए और फाइनली परफॉर्मेंस चेक कर लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट। सो फॉरवर्ड सिलेक्शन, बैकवर्ड एस्टिमेशन, एग्जॉस्टिव सिलेक्शन, ये सारे के सारे आपके प्रोसेस के पार्ट हैं रैपर मेथड के। दूसरा आपका फिल्टर मेथड है, फिल्टर मेथड के पार्ट यहाँ पर, इसमें क्या करते हैं? सेट ऑफ फीचर, बेस्ट फीचर सेलेक्ट किया जाता है, लर्निंग एल्गोरिथम लगाई जाती है और परफॉर्मेंस को चेक कर लिया जाता है। और एम्बेडेड में क्या करते हैं? सेट ऑफ फीचर्स होते हैं, जनरेट करते हैं सबसेट, एल्गोरिथम और परफॉर्मेंस को दोनों को एक साथ लगाते हैं। डायग्राम ही आप बनाएंगे ना तो दिस इज गोइंग टू वर्क टू मच। तो सेट ऑफ फीचर्स, जनरेट सबसेट, सबसेट को जनरेट करते हैं, एल्गोरिथम प्लस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सो कंपैरिजन फिर इन को देख लेते हैं। सेट ऑफ फीचर, सबसेट जनरेट किया,
एल्गोरिथम लगाई, फीडबैक लगाया, घुमाते रहे। इसमें यहाँ पे जब तक कि वो इटरेशन मेथड जब तक कि वो काम ना कर ले, यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक कर ले। फीचर किया, बेस्ट फीचर्स निकाल लिए, सेलेक्ट किया, लर्निंग एल्गोरिथम लगाई, परफॉर्मेंस चेक कर लिया। एम्बेडेड मेथड में सेट ऑफ फीचर जनरेट करते हैं, सबसेट एल्गोरिथम और परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, फाइनली आउटपुट। सो दिस इज बेसिकली प्रोसेस। इनपुट वेरिएबल न्यूमेरिकल है या कैटेगरल है, आउटपुट वेरिएबल कैसे है, न्यूमेरिकल है या कैटेगरल है, न्यूमेरिकल या कैटेगरल उसी के हिसाब से देते हैं। पियर्सन, स्पीयरमैन, अनोवा ये प्रोसेस हो गए। न्यूमेरिकल में यहाँ भी अनोवा यूज हो जाएगा, कैटेगरल में भी यूज कर सकते हैं इसको। कैंडल मेथड यूज कर सकते हैं, कैटेगोरियल का है, कैटेगोरियल में चाई स्क्वायर और द ची स्क्वायर मेथड और म्यूचुअल इंफॉर्मेशन मेथड, ये पूरा प्रोसेस है। तो ये कंटेंट आई एम गोना टू शेयर विद यू, ये सारा का सारा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप इसको देख भी सकते हैं, उसको पढ़िए, जहाँ आपको समझ में ना आए वो आप कंप्लीट कर लीजिए। बाकी इट्स ओके, इजी है, सिंपल है, नो इशू एट ऑल। ये फाइल मैं आपको डाउनलोड करके दे देता हूँ, ये फाइल डाउनलोड भी कर देते हैं और में वीडियो आपके पास आ ही जाएगा। तो एक आज ओवरऑल मैंने ले लिया। एक ओवरऑल मैंने आपको दे दिया यहाँ पर, इससे आप सॉल्व करिए। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। थैंक यू। ये पूरा क्वेश्चन बैंक मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद में आप इस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कीजिए, देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए, जिस लाइन में जहाँ डाउट हो यू कैन आस्क इजीली। थैंक यू सो मच।